Hello students, today we will start a new chapter of your literature book, The Selfish Giant. This chapter is written by Oscar Wilde. He was a well-known writer from Ireland and he used to write very interesting stories, novels, plays and poems. So here we are going to start a very interesting chapter of his, which he is telling about a very huge giant. He was very selfish earlier and slowly and steadily he became a very friendly and caring giant. Let's read the chapter and try to understand what happens in the story. So let's start with the reading of this chapter. Every afternoon, the children used to go and play in the giant garden. The giant was not there. He had gone to meet his friend. It was a large, lovely garden with soft green grass. There were beautiful flowers that grew on the grass like stars. There were 12 peach trees in the garden. The birds sang sweetly on the trees and the children listened to them in delight. They said to each other, "How happy we are here!" The giant stayed with his friend for 7 years. One day he decided to come back to his castle. When he came back, he saw children playing happily in his garden. "What are you doing here?" he cried in a gruff voice. The frightened children just ran away. "My own garden is my own garden," said the giant, "and I will allow nobody to play in it but myself." So he built a high wall all around it and put up a notice board, "Trespassing will be persecuted." He was very selfish. So students, here Oscar Wilde has started this chapter by depicting a giant garden. A giant garden. Garden means a playground and giant means very huge. अब huge एक person भी हो सकता है, एक जगह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. Giant means very huge, very big. Okay? So सबसे पहले ऑस्कर वाइल्ड ने आपको क्या बताया, राइटर ने आपको क्या बताया कि आफ्टरनून में जो बच्चे हैं बहुत सारे, वो कहाँ पर हैं, गार्डन के अंदर हैं एंड दे आर प्लेइंग इन द गार्डन. और वहाँ पर वो लवली गार्डन के अंदर होते हैं जहाँ पर वो ग्रीन ग्रास, यू कैन सी ग्रीन ग्रास और ब्यूटीफुल फ्लावर्स के अराउंड हैं. और उस गार्डन के अंदर बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, ग्रास हैं, और ग्रास जो है वो कैसी दिखती हैं, स्टार्स जैसी, ग्रीन कलर के स्टार्स जैसी दिखती हैं. वहाँ पर बहुत ही सुंदर पीच के ट्रीज़ भी हैं. पीच इज़ अ फ्रूट और उसके 12 वहाँ पर ट्रीज़ भी उगे हुए हैं. एंड चिल्ड्रन आर सेइंग दैट कि हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी हेयर. एंड कैन यू सी द वर्ड डिलाइटेड? डिलाइटेड मीन्स विथ ग्रेट pleasure. Pleasure means they are very happy. Okay? So children are very happy here and they are playing in the garden. ठीक है, ये किसका गार्डन है? एक giant का गार्डन है. Giant means a very huge person. ठीक है, एक huge person. Can you see in this picture? There is a man who is very huge and the students are very little in front of this person. ठीक है, तो ये एक इतने बड़े giant person का गार्डन है और उसका ये सेम घर है. कैन यू सी इन द पिक्चर? देयर इज़ अ ह्यूज हाउस, सो दैट इज़ नोन एज castle. ओके, कैन यू सी दिस वर्ड castle?
ओके, कासल मीन्स अ वेरी ह्यूज हाउस, जिसमें कौन रहता है? जाइंट रहता है. जाइंट मीन्स अ वेरी ह्यूज पर्सन लाइक दिस. ओके, सो जाइंट जो है 7 ईयर्स के लिए अपने फ्रेंड के घर रहने चला गया था. तो 7 ईयर्स तक बच्चे यहाँ पर रोज़ आते थे और यहाँ पर खेलते थे. ठीक है, 7 ईयर्स तक द जाइंट वॉज नॉट हेयर. ठीक है, तो व्हाट हैपन्स आफ्टर सम टाइम द जाइंट डिसाइडेड टू कम बैक टू हिज कासल. ठीक है, वो अपने घर वापस आने का सोचता है. कौन? जाइंट. ओके, सो he saw that a lot of children are playing in the garden. So what he says, what are you doing here? वो बहुत ही रूड और रफ वॉइस में बच्चों को बोलता है. जैसे ही वो ये वॉइस सुनते हैं सारे बच्चे, चिल्ड्रन, वो फटाफट से they just ran off, भाग जाते हैं. ओके, and he says that ये मेरा गार्डन है. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. ये मेरा गार्डन है एंड नो बडी विल बी अलाउड हेयर टू कम. ओके, सो वॉट ही डज, अपने गार्डन के आसपास वो बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स जो हैं कंस्ट्रक्ट कर देता है. बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बना देता है और वॉल के ऊपर क्या लिख देता है? नोटिस लिख देता है. एक नोटिस मीन्स एक पोस्टर टाइप लगा देता है. ट्रेसपासिंग विल बी prosecuted. Trespassing will be prosecuted. Trespassing means जो ओनर है उसकी मर्जी के बिना अगर आप किसी जगह पर आते हो तो उसको बोलते हैं ट्रेसपासिंग. ठीक है, ट्रेसपासर जो हैं उनको हम प्रोसिक्यूट करेंगे. प्रोसिक्यूट मीन्स उनको हम पनिशमेंट देंगे. ओके, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड. ही वॉज वेरी सेल्फिश हेयर. ठीक है, तो जितने भी बच्चे यहाँ आते हैं उसके पास, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से. ही सेइंग कि ये मेरा गार्डन है और मैं अपने गार्डन में किसी को आने नहीं दूंगा. ओके, नाउ द पुअर चिल्ड्रन हैड नोवेयर टू प्ले. दे वॉन्डर्ड अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर स्कूल गॉट ओवर एंड टॉक्ड अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड. देन केम द स्प्रिंग all over the country. There were blossom and birds. Only in the garden of Giant it was winter, with snow and frost. The birds did not care to sing in it, as there were no children, and the trees forgot to blossom. I cannot understand why spring is so late in coming, said the selfish giant. As he sat at the window and looked out at his cold and white garden. I hope there will be a change in the weather soon. But spring never came, nor did summer. So students, now what happens that the children are very sad now. वो बहुत sad हैं. They used to come to the garden daily, but अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा giant आ गया है और उसने कह दिया है कि अब उसके गार्डन में कोई नहीं आएगा और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी walls भी खड़ी कर दी हैं. So daily students क्या करते हैं, उस गार्डन के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में बातें भी करते हैं. They used to talk about the beautiful garden inside. ठीक है, देन क्या होता है कि स्प्रिंग सीज़न जो है वो आ जाता है इन द कंट्री. स्प्रिंग सीज़न क्या होता है, जब न्यू फ्लावर्स ग्रो करते हैं ट्रीज़ के ऊपर और लीव्स जो हैं न्यू आती हैं ट्रीज़ के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर. ओके, सो व्हाट हैपन्स कि कंट्री के अंदर स्प्रिंग जो है सीज़न वो आ जाता है. बट नाउ द विंटर इज़ स्टिल देयर इन द गार्डन. जाइंट के गार्डन में अभी भी विंटर होता है. कैसे पता लगता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी स्नो है और फ्रॉस्ट है. ओके, फ्रॉस्ट मीन्स आइस, जमी हुई आइस. सो ना तो वहाँ पर जाइंट के गार्डन में कोई बर्ड सिंग करने के लिए जाती है और जो ट्रीज़ होते हैं जाइंट के गार्डन में वो भी ब्लॉसम नहीं करते, मीन्स न्यू फ्लावर्स और न्यू लीव्स को ग्रो नहीं करते. ऐसा लगता है कि वो ट्रीज़ जो हैं फॉरगॉट मीन्स भूल गए हैं, ब्लॉसम करना मीन्स न्यू फ्लावर्स को ग्रो करना ट्रीज़
भूल गए हैं. I cannot understand why the spring is so late in coming. ये कौन बोलता है? ये बोलता है giant. क्यों बोलता है? He is thinking that मेरे ही garden के अंदर अभी तक spring क्यों नहीं आया? He is thinking and he is looking outside the garden and from his window. Okay, and he is saying कि मुझे लगता है I hope कि जल्दी से सीज़न चेंज हो और मेरे पास मेरे गार्डन में भी स्प्रिंग आए और उसके बाद गर्मियाँ भी आए. बट उसके गार्डन में ना तो स्प्रिंग आता है, बट नो स्प्रिंग नेवर केम. ही सेज बट स्प्रिंग नेवर केम नॉर डिड द समर. ठीक है, ना गर्मियाँ आती हैं और ना ही स्प्रिंग आता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, राइट. One morning, when the giant woke up, he heard some lovely music. It was little bird singing outside his window. It seemed to him the most beautiful music in the world. A nice perfume reached him, hoping that spring had come to his garden at the last. The giant jumped out of his bed and looked out. What did he see? He saw the most wonderful sight. Though through the hole in the wall, the children had crept in and they were sitting on the trees. The trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossom. The birds were flying around, chirping with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. Some children were playing on the grass. It was a lovely sight. So students, as you know that the children are very sad now. जब भी वो स्कूल से वापस आते हैं वो गार्डन नहीं जा सकते हैं बिकॉज अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट आ गया है और उसने बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स खड़ी कर दी हैं गार्डन के आसपास. सो बिकॉज ऑफ दैट द चिल्ड्रन आर वेरी सैड नाउ. ओके, एंड उसकी वजह से उस गार्डन के अंदर अभी भी स्नो है और अभी भी वहाँ पर उस गार्डन के उस बड़े से गार्डन के वहाँ पर विंटर ही सीज़न चल रहा है. अभी पूरी कंट्री के अंदर स्प्रिंग सीज़न आ चुका है बट स्टिल द गार्डन इज़ हैविंग द विंटर सीज़न इन इट. ओके, सो व्हाट डज द जाइंट विश कि उसके गार्डन में भी जल्दी से स्प्रिंग आ जाए. सो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, द जाइंट इज़ स्लीपिंग एंड ही हर्ड्स अ वेरी नाइस म्यूज़िक. उसको बहुत अच्छा एक म्यूज़िक सुनाई देता है. वो फटाफट से उस म्यूज़िक की वजह से उठता है एंड व्हाट ही सॉ दैट द बर्ड इज़ सिटिंग आउटसाइड हिज विंडो. एक बर्ड उसकी विंडो के आउटसाइड मीन्स बाहर बैठी होती है एंड उसको एक बहुत ही अच्छी स्मेल भी आती है, एक परफ्यूम जैसी स्मेल आती है. ठीक है, वो ये सोचता है कि फाइनली अब उसके गार्डन में स्प्रिंग सीजन तो आ ही गया होगा. एंड व्हाट डज़ ही लुक, व्हाट डज़ ही सी, उसको एक बहुत ही ब्यूटिफुल साइट दिखती है. साइट मीन्स अ सीन, साइट मीन्स अ सीन, बहुत ही वंडरफुल और सुंदर साइट दिखती है. दैट थ्रू अ होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, मीन्स द स्टूडेंट्स जो भी वो जो चिल्ड्रन है वो छुपते छुपाते वेरी केयरफुली, क्रेप्ट मीन्स मूव्ड स्लोली एंड केयरफुली, छुपते छुपाते गार्डन के अंदर आ गए हैं और अब वो ट्रीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं. ओके, एंड दे हैव गैदर्ड अराउंड द ट्री, और वहाँ पर ट्रीज़ अब खुश हो गए हैं बच्चों को अपने पास देखकर, जिसकी वजह से अब उन्होंने ब्लॉसम करना मीन्स न्यू फ्लावर्स उगाना शुरू कर दिया है और ग्रास भी जो है वहाँ पर उगने लग गई है. ठीक है, एंड जो बर्ड्स हैं वो भी बच्चों को देखकर वापस आ गए हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, चिर्पिंग विद डिलाइट. डिलाइट मीन्स प्लेजर. वो बहुत खुश हो गए हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन इन द गार्डन. ओके, अब चिल्ड्रन जो हैं वो भी गार्डन में आके बहुत खुश हैं और गार्डन के जो ट्रीज़ और प्लांट्स हैं वो भी बहुत खुश हैं.
Okay children, right? Only in one corner of the garden it was still winter. A very small boy was crying as he could not reach the branch of a tree. As the giant looked at this child, his heart melted. "How selfish I have been," he said. "Now I know why spring did not come here. I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever." He was really very sorry for what he had done. So now what happened students, that एक कॉर्नर के अंदर अभी भी साइड में बर्फ़ जमी होती है, स्टिल विंटर जैसा दिख रहा होता है किसको, जाइंट को। और वहाँ पे जाके जब जाइंट देखता है तो वहाँ पे एक बॉय रो रहा होता है बिकॉज ही विश्ड कि उसको यू कैन से ब्रांच तक पहुँचना है, ट्री की ब्रांच तक पहुँचना है। ओके, सो जाइंट को समझ आता है वेन एवर द चिल्ड्रन विल बी सैड द गार्डन विल ऑल्सो बी सैड, और गार्डन के अंदर भी बहुत विंटर रहेगी। सो उसको समझ आता है कि जो बच्चों के साथ उसने किया वो गलत था, बच्चों को गार्डन में से भगाना नहीं चाहिए था। और अब वो सोचता है कि ही विल नॉक डाउन द वॉल। नॉक डाउन मीन्स ये सारी जो दीवारें उसने खड़ी की हैं वो सब दीवार को गिरा देगा, और जो गार्डन है, माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रंस गार्डन फॉर एवर एंड एवर, मीन्स अब ये वाला जो गार्डन है, अब ये जाइंट का गार्डन नहीं, यहाँ पर चिल्ड्रन गार्डन हम इसको बोलेंगे। और अब सारे चिल्ड्रन, सारे बच्चे यहाँ पर अलाउड होंगे। पहले जो उसने सारे चिल्ड्रन को भगा दिया था वो उसने गलत किया, उसकी वजह से उसका गार्डन भी सैड हो गया और वहाँ पर विंटर रही। जैसे ही बच्चे गार्डन के अंदर वापस आए वहाँ पर सब स्प्रिंग सीज़न हो गया और गार्डन भी खुश हो गया, एज वेल एज जो आसपास के बच्चे थे वो भी हैप्पी हो गए। एंड ही वॉज वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। नाउ ही वॉज फीलिंग very sorry. Okay, right? So he crept down and opened the front door quite softly and went out into the garden. But then the children saw him. They were so scared that they all ran away. The winter came back again. Only the little boy in the corner did not run. His eyes were full of tears and he did not see the giant coming. The giant gently picked him up and put him on the branch of the tree. The birds came and sang on the tree and there were blossoms on it again. So students, now what happens that the giant is feeling guilty. So he says that जितनी भी वॉल्स उसने गार्डन के आसपास बनाई हैं वो ये सब तोड़ देगा, ठीक है। और अब वो अपने घर से नीचे उतर कर आता है, डाउनस्टेयर्स, ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर्स एंड ही ओपन्स द फ्रंट डोर, और वो बच्चों के पास आने का ट्राई करता है। जैसे ही बच्चे उसको अपने पास देखते हैं वो सब डर जाते हैं और डर के भाग जाते हैं, बिकॉज आपको याद होगा कि उसने क्या नोटिस लगाया था, ट्रेसपासर्स विल बी परसिक्यूटेड। सो इसलिए सारे जो बच्चे होते हैं वो भाग जाते हैं बिकॉज उनको पता था कि जायंट उन बच्चों को अपने गार्डन के अंदर अलाउ नहीं करेगा। ओके, सो वो इलीगली उसके गार्डन में घूम रहे होते हैं। सो दैट्स वाई जैसे ही वो जाइंट को देखते हैं दे ऑल रैन अवे। ओके, वो सब भाग जाते हैं अपने अपने घर, ठीक है। देन व्हाट हैपन्स, द विंटर केम बैक अगेन। जैसे ही जो सारे बच्चे भागते हैं तो वो उस गार्डन के अंदर फिर से विंटर आ जाती है, फिर से वहाँ स्नो पड़ने लग जाती है, फिर से ठंड होने लग जाती है, ठीक है। तो बट सडनली जो जायंट है वो एक लिटिल बॉय, आई टोल्ड यू ना
कि देयर वॉज अ लिटिल कॉर्नर जहाँ पे अभी भी ठंड थी, तो उसी कॉर्नर में वो दोबारा जाता है और वहाँ पे लिटिल बॉय अभी भी रो रहा होता है बिकॉज उसको ब्रांच पे चढ़ना होता है, ठीक है। तो वो बड़े से जाइंट को आते हुए नहीं देख पाता बिकॉज उसकी आईज वर फुल ऑफ टीयर्स. His eyes were full of tears. That is why he was unable to see the giant. And giant को आते हुए वो नहीं देख पाता. जब वो giant को आते हुए नहीं देख पाता, सडनली जो giant है उसको वो ब्रांच के ऊपर, ट्री की ब्रांच के ऊपर बिठा देता है. और जैसे ही ट्री की ब्रांच के ऊपर बिठाता है वो बच्चा खुश हो जाता है, वो यंग लिटिल बॉय वो खुश हो जाता है. और जैसे ही वो खुश होता है तो बर्ड्स जो हैं वो वापस आ जाती हैं, विंटर चली जाती है उस गार्डन से और फिर से ट्रीज़ के ऊपर ब्लॉसम हो जाता है, मीन्स ब्लॉसम करने लग जाते हैं ट्रीज़, फ्लावर्स फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है. सो एज आई मेड यू अंडरस्टैंड, जो बच्चों की खुशी से ही गार्डन की खुशी जुड़ी होती है. ओके. The little boy flung his arms around the giant's neck and kissed him. When the other children saw that the giant was not wicked any longer, they came running back, and along with them came the spring. "It's your own garden now, little children," said the giant. He took a big hammer and knocked down the walls. So now what happens that वो जो little boy था जो रो रहा था, अब वो फटाफट से खुश हो जाता है. और flang means threw suddenly, means open arms के साथ giant का वेलकम करता है और कहता है कि I like you, and he also kisses him. वो एक छोटा बच्चा he embraced the giant. Then what happened कि जैसे ही बाकी के बच्चे देखते हैं कि वो जो एक यंग बॉय है वो खुश है और वो ट्री के ऊपर है, एंड द जाइंट इज़ नो लॉन्गर विकेड. विकेड मीन्स बैड पर्सन, यू कैन से गुस्से में नहीं है. तो वो फटाफट से सारे स्टूडेंट्स, सारे चिल्ड्रन भागकर गार्डन के अंदर वापस आ जाते हैं, एंड स्प्रिंग भी वापस आ जाता है. और फटाफट से जो जाइंट है वो एक बिग हैमर लेकर आता है और सारी वॉल्स तोड़ देता है. नॉक डाउन मीन्स तोड़ना, सारी वॉल्स तोड़ देता है. ओके, राइट. All day long the children played in the garden, and in the evening came to the giant to bid him goodbye. So now, as I told you, that the giant is no longer angry with the children, and he said that I will share my garden with you, and ये अकेला मेरा ही गार्डन नहीं है, my own garden, it's your garden also. तो he says that ये जो गार्डन है ये आप लोगों का गार्डन भी है, मेरा गार्डन भी है, हम सबका गार्डन है. ओके, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पर्सनल गार्डन है. सो यू कैन कम हेयर एंड प्ले हेयर. ओके. सो व्हाट हैपन्स कि सारा दिन बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, स्कूल से आफ्टरनून मतलब स्कूल से वापस आने के बाद सारा दिन खेलते हैं, और इवनिंग में घर जाते वक्त उसको गुड बाय करने के लिए आते हैं. किसको? जाइंट को. ओके. Every afternoon when school was over, children came and played with the giant. Years passed by. As the giant grew old, he sat on the chair and watched the children playing. He would say, "I have many beautiful flowers, but the children are the most beautiful flowers of all." So what he says that कि जो मेरे गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बट सबसे अच्छे फ्लावर्स कौन है? दीज चिल्ड्रन. ठीक है, दीज चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन. सो एज आई टोल्ड यू दैट इन द आफ्टरनून बहुत सारे साल और बीत जाते हैं, रोज़ बच्चे उसके पास आते हैं, और जो जाइंट है वो ओल्ड हो चुका है. नाउ ही इज़ सिटिंग इन द चेयर, और चेयर पे बैठ के वो बच्चों को देखता है, एंड ही सेज दैट ही हैज़ मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, बट जो चिल्ड्रन है वो ही इस गार्डन के ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं. ओके स्टूडेंट्स,
So by reading this chapter we get to know that we should share everything with our you can say society. हमें ऐसा नहीं है कि कुछ personal रखना चाहिए. If nature has given everything to all of us, हमें कुछ भी पर्सनली अपने लिए हम नेचर को संभाल के नहीं रख सकते. नेचर सबकी है. ओके, वी शुड शेयर एवरीथिंग विद each other. Okay, so I hope you have understood this chapter. So its exercises will be done in today's class only, so I will be sending you the PDF. So complete the work in your notebooks. Okay students, and give it a thumbs up, give it a like if you have understood, and if there are some questions you can ask it in the comment box, and do subscribe that channel. There is a word written in red color, subscribe. So when you will press that subscribe button, you will be able to see the video whenever I post it. So make sure that you are pressing the subscribe button as well as the like button. Okay, bye bye, take care.